اوبر ٹیکسی معاملے نے ہمارے سسٹم کی پول کھول کر رکھ دی ہے. ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جب تک کوئی حادثہ نہیں ہوتا ہم جاگتے نہیں, اور جب جاگتے ہیں تو ایکشن کے نام پر دو چیزیں کرتے ہیں, یا تو پرتیبند لگا دیتے ہیں یا پھر نئے قانون بنانے کی وکالت کرنے لگتے ہیں. اوبر کانڈ کے بعد کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. کئی راجوں نے فٹافٹ کارروائی کے نام پر اوبر سمیت تمام ٹیکسی ایگریگیٹرز پر ہی روک لگا دی. اوبر ٹیکسی فار شور اور اولا جیسے ایپ بیسڈ ٹیکسی بکنگ کمپنیوں پر قانونوں کے النگھن, لائسنس پرکریا کی اندیکھی جیسے آروپ لگائے جا رہے ہیں. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پچھلے ایک سال سے یہ ٹیکسیاں سڑکوں پر بے لگام دوڑ رہی تھی. پی ای نویشکوں نے قریب 2000 کروڑ کا ان پر نویش بھی کر دیا ہے. لیکن اب پرتیبند کے بعد سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا سرکار کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہے اور بدلتی ٹیکنالوجی سے نپٹنے کے لیے اس کے پاس ٹولز ہی نہیں ہیں. ہمارے ساتھ اس خاص چرچا میں جڑ رہے ہیں میٹرکس پارٹنرز کے ایم ڈی اوینیش بجاج, taxifashore.com کے فاؤنڈر اپرمیہ رادھا کرشنن اور رائس وینچر فنڈ کے فاؤنڈر ریحان یار خان, اور جی پی آر ایس سیوا دینے والی ایک اور اسٹارٹ اپ کمپنی نواتا کے کو فاؤنڈر سرجیت داس. آپ سبھی کا ہی سواگت ہے. اوینیش, میں اس چرچا کی شروعات آپ سے کرنا چاہوں گی کیونکہ 2004 میں آپ کے ساتھ ایسی ہی درگھٹنا ہوئی تھی جب آپ کی کمپنی بازی.com پر کوئی ایک ویڈیو بیچا جا رہا تھا جس کا آپ کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا. اس کے بعد آپ کو گرفتار کر دیا گیا تھا. 10 سال بعد ایسا ہی حادثہ پھر ہوا ہے. سرکار کو کسی بزنس کے طور طریقوں کی سمجھ نہیں ہے اور سب سے آسان طریقہ ان کو یہی لگا اس معاملے میں کہ سیوا کو ہی بین کر دیں. 10 سالوں بعد بھی خامی کہاں دکھ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے, فرسٹ آف آل obviously جو انسیڈنٹ ہوا وہ تو بہت سیڈ ہے, اینڈ میرے لیے تھوڑا سا یہ ڈیجا وو ہے کہ 10 سال پہلے سیم چیز ہوئی تھی. اس سمے فرینکلی ای کامرس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم تھا, مارکیٹ پلیسز کیا ہوتی ہیں کسی کو نہیں معلوم تھا. سو دا ریالٹی ارشد ہے کہ جو نئی نئی کیٹیگریز کریٹ ہو رہی ہیں وہ گلوبلی کریٹ ہو رہی ہیں. وہاں کی گورنمنٹس کو بھی کئی بار پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے, یہ کیسی کیٹیگری ہے. آئی تھنک دا مین ایشو یہ بنتا ہے, مین مدعا یہ بنتا ہے کہ جب کچھ ہوتا ہے تو آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہو. یہ نہیں پاسبل ہے کہ یہ جو اتنی ٹیکنالوجی کی جب ڈسرپشن اور انوویشن ہوتی ہے ان اے گڈ وے, ہر سمے اس کے لیے لاز بنانا مشکل ہوتا ہے. وہ جنرلی ٹیکنالوجی آپ جو بھی لا بنا لو اسے ایک آگے رہے گی اینڈ وہ ہیلپ بھی کر سکتی ہے. لیکن جب بھی اس میں کچھ کانفلکٹ آتا ہے تو جو ریئیکشن ہونا چاہیے وہ تھوڑا سا میجرڈ ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے. جی, میجر ریئیکشن ہونا چاہیے. انفیکٹ اپرمیہ میں آپ کے پاس جانا چاہوں گی کیونکہ یہ ایک نیجک ریئیکشن تھا, جھٹکا سبھی کو لگا ہے, چاہے وہ آپ جیسی کمپنی ہو, ڈرائیورز ہوں جو اس بزنس میں انوالوڈ ہیں, آپ کے پارٹنرز ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میرے جیسے کسٹمرز جو ایسی سیوائیں کافی ریگولرلی یوز کرتے ہیں. نیجک کی جگہ ایک میجر ریئیکشن آتا تو شاید سب کے لیے بہتر ہوتا. ہاں, تو the fundamental is that we are here to provide a very good service to our consumers. We started because there was a need for everyday commute in the industry. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں اور جو بھی سیفٹی دینے کے لیے, کنزیومرز کو سیفٹی دینے کے لیے جو بھی ہمیں ریئیکشن اور رولز فالو کرنا ہوگا وہ ہمارے آپریٹر کے ساتھ ہم کام کر کے وہ فالو کر لیں گے. ریحان, یہاں پر معاملہ تھوڑا چھوٹا لگتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سروس بین کر دی, 3 آپریٹرز پر اس کا اثر پڑے گا, لیکن یہاں پر کئی سادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں. اسپیشلی اوبر کہتی ہے یہ ہمارے پارٹنرز ہیں جو لوگ ایکچولی گاڑیاں چلا رہے ہیں. کئی لوگوں نے اپنے نوکری چھوڑ کر انٹرپرینیورز بننے کی کوشش کی ان کمپنیوں کے ساتھ. سو جو امپیکٹ ہے جس کا شاید اندازہ نہیں تھا سرکار کو جب انہوں نے یہ قدم اٹھایا. بالکل ہرشدہ, یہاں پہ میرے حساب سے کچھ 100,000 1 لاکھ تقریباً مائکرو انٹرپرینرز ہیں جن کی گاڑیاں ہیں, اور میں ان کے بارے میں فکر کر رہا ہوں کہ وہ یہ مہینے ای ایم آئیز کیسے بھریں گے. جی, اور یہ بہت بڑی فکر ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نیجک ریئیکشن ہے یہ بڑے انویسٹرز اور کمپنیز سے زیادہ جو ایشو آ رہا ہے یہ بیچارے مائکرو انٹرپرینرز پہ آ رہا ہے.
एक तरफ से हम लोग बोल रहे हैं कि वी वांट टू इनकरेज दिस कि हम आप माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप आप करिए, आप बैंक लीजिए, अपनी गाड़ी चलाइए, आप उसको ठेके पे लगाइए कहीं, और दूसरी तरफ हम जो उनको ऑर्डर्स भेज रही हैं। और क्या गलत किया ये कंपनीज ने, जो अगर आप होटल में जाते हैं, आप कॉन्सियर्ज के पास जाते हैं, आप गाड़ी बुक करते हैं, वो इसी किस्म के ऑपरेटर को गाड़ी देते हैं, और ये लाइसेंस्ड ऑपरेटर्स हैं। आपने ही लाइसेंस की इनको, आपने उनको टूरिस्ट व्हीकल लाइसेंस दिया। वो टूरिस्ट व्हीकल लाइसेंस कमर्शियलिटी क्या है वो अलग बात है जी, लेकिन सिक्योरिटी इज द सेम फॉर दैट लाइसेंस जैसे कि कोई दूसरी लाइसेंस है। आपने उनको लाइसेंस दिया, ये सिर्फ सर्विसेज है जो उनको ऑर्डर्स भेज रही है। अब वो बेचारे जो ये ठेके पे लगाए हैं, जो उबर की ठेके पे लगाए या ओला के ठेके पे लगाए, वो क्या करेंगे ये महीने, दिसंबर के महीने में? क्या गवर्नमेंट आके उनको उनकी ईएमआई भरने वाली है? वो मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है। अप्रमेय, कमिंग बैक टू यू, इम्पैक्ट क्या रहा है? जो लोग आपके साथ काम करते हैं, जो टैक्सी सेवा एक्चुअली प्रदान कर रहे हैं, किस तरह का इम्पैक्ट आप लार्जली देख रहे हैं? अगर आप हमें बता सके कि टैक्सी फॉर श्योर कितने सारे लोगों से जुड़ा हुआ है इस समय? हमारे साथ हम 3 साल से काम कर रहे हैं अभी तक, और हमारे साथ करीबन 20-25,000 ड्राइवर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, और उनके पास पहले भी यही परमिट था, यही जो काम कर रहे थे, पॉइंट टू पॉइंट कर रहे थे, पर उनका स्केल नहीं हो रहा था। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं आ रहा था क्योंकि कस्टमर कहीं और गाड़ी मांग रहे हैं और ये कहीं और है। तो हमने क्या किया, हमने टेक्नोलॉजी लगाया और नियरेस्ट कस्टमर इनके साथ जुड़ा। सो ऑल देयर अर्निंग्स हैड डबल्ड और ट्रिपल्ड। सो there has been a very positive impact on their lives, and all the drivers are of course concerned as to why they were allowed to apply before with the same permits and now they won't be able to. So those are some of the questions that are coming from the drivers as well. ओके, रेहान, मैं वापस आपसे ये समझना चाहूंगी, यहाँ पर नौबत ये आई है कि एक ऐप बेस्ड सर्विस को आप बैन कर दें, और कहा गया है कि जब तक ये रजिस्टर नहीं होती, आई एम श्योर ओला के आप अर्ली स्टेज इन्वेस्टर रहे हैं, इनफैक्ट आपने एंजल इन्वेस्टिंग की थी और उसके बाद दूसरी कंपनियों ने अपना हाथ लगाया है कंपनी पर। किस तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी अगर इसको आपने सर्टिफाई करना है या फिर उसको क्लीन करने की जरूरत है? आप सिर्फ ऐप रजिस्टर करने से लीगल हो जाएंगे क्या? ये देखिए हर्षदा जी, ये बहुत बड़ा मसला है, और अगर आप वो दिल्ली गवर्नमेंट की नोटिस पढ़े और नोटिस के पीछे क्या सियासत, और दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली इलेक्शंस आ रहे हैं। आज मोदी जी ने भी ब्रीफिंग में मीडिया में आया है कि राजनाथ जी ने उनको बताया कि इलेक्शंस आ रहे थे तो काफी बीजेपी की जो ग्राउंडमैन थे, जो लोकल, वो परेशान हुए, तो उनको बोले, तो उन्होंने गवर्नर जी को बता दिया कि चलो इसको बैन कर दो। नो, अगर आप नोटिस को पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द नोटिस इज ऑल इलीगल टैक्सी सर्विसेज हैव टू बी बैंड। ये एप्स जो है ये टैक्सी सर्विसेज है ही नहीं, ये ऑपरेटर्स ही नहीं है। ये जैसे कि आपने क्लियर ट्रिप या मेक माई ट्रिप को बैन कर दिया, अगर कोई एयरलाइन के साथ कुछ घटना हुई या हादसा हुआ, देयर इज नो कनेक्शन देयर इज अ कनेक्शन बट दे आर नॉट द ऑपरेटर। तो बात ही नहीं हुई कि ये आर अफेक्टेड बाय दैट बैन। तो जो पोर्ट्रेल आ रहा है कि हमने एप्स को बैन कर दिया, एप्स आर नथिंग बट अ वे ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। अगर आप होटल में भी जाते हैं और आप एयरपोर्ट जाना चाहे, जो होटल का कॉन्सियर्ज आपको टैक्सी बुलाता है, वो यही किस्म की टैक्सी बुलाता है आपको। तो आई डोंट सी हाउ एग्जैक्टली इसको रेगुलेट करेंगे और क्या करेंगे इधर, क्योंकि इनका रोल काफी मिनिमल रोल है इसमें। जी, बेसिकली एक कनेक्शन है। सुप्रजीत, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आप खुद एक ऐसी कंपनी चलाते हैं जो जीपीआरएस के जरिए व्हीकल मैपिंग, व्हीकल ट्रैकिंग करती हैं। इस पूरे मामले में क्या आपको वाकई में लगा कि कहीं ना कहीं कुछ सिक्योरिटी रिस्क था? हाँ, सिक्योरिटी रिस्क तो थोड़ा सा था। तो मैं ये इशू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखता हूँ। एक सबसे पहली बात है कि ड्राइवर ने उबर सर्विस में एंट्री कैसे ली, तो वहां पे ऑब्वियसली उबर को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द एंट्री ऑफ द ड्राइवर। उसके बाद वो व्हीकल में क्या इनफ सिक्योरिटी मेजर्स थे। एक ऐप बेस्ड सर्विस चला रहे तो मोबाइल को व्हीकल से डिस्कनेक्ट करना या वॉट एवर, दैट इज वेरी इजी। तो देर आर हार्डवेयर स्पेसिफिक सोल्यूशंस जो डेफिनेटली इंप्लीमेंट होने चाहिए थे, जो ऑलवेज ऑन ट्रैकिंग रख करे। तो अगर ये सिक्योरिटी सोल्यूशन इंप्लीमेंटेड होते थे तो सच इंसिडेंट्स प्रिवेंट किए जा सकते थे, जो आई बिलीव दैट इन दिस केस वाज ओवरलुक्ड फॉर वॉट एवर रीजन।
ओके, लेकिन मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि किस तरह के अब सिक्योरिटी मेजर्स कंपनियां फोकस में लाना चाहेंगी, चाहे वो टैक्सी फॉर श्योर हो, ओला कैब जैसी कंपनी हो या फिर उबर हो, जिसके नाम से ये पूरा मामला, पूरा मुद्दा उठता हुआ दिखाई दिया था। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक इस चर्चा में, लेकिन लौट कर आएंगे, जानेंगे किस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ ये जो सरकार का रवैया है कि बिजनेस नहीं समझ आया तो उसे बैन कर दे, ये क्या सिग्नल भेज रहा है इन्वेस्टर्स को, विदेशी निवेशकों को खास तौर से। ब्रेक के बाद इस सब पर चर्चा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। सरकार ने जहां पर उबर जैसी ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाएं देने वाली या फिर टैक्सी बुकिंग सेवाएं देने वाली कंपनियों पर एक हरकत में आकर बैन लगा दिया, क्योंकि वो नहीं समझ पाए कि बेस्ट पॉसिबल रिएक्शन क्या हो इस तरह के मेजर पर। हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल, निवेशक हैं जो ओला जैसी कंपनियों में पैसा लगा चुके हैं, टैक्सी फॉर श्योर जो एक ऐसी ही एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, और साथ ही सुरजीत दास जो प्राइमरीली जीपीआरएस सेवाएं दे रहे हैं और टैक्सी चालक इनके बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं। अवनीश, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगी। जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, उबर के केस में ये एक कंपनी है जो प्राइमरीली कंज्यूमर्स और ड्राइवर्स को कनेक्ट करती है। अब मामला ये उभर कर आया है कि कंपनी ने वेरिफिकेशन शायद अपने ड्राइवर की ठीक से नहीं की। क्या आपको लग रहा है अब वो समय आ गया है? ऑफ कोर्स इट्स सैड कि इस तरह के इंसिडेंट के बाद ये सिक्योरिटी वाला मामला हाईलाइट हो रहा है, लेकिन वो एक मेजर ग्राउंड रहेगा इन बिजनेसेस को आगे सक्सेसफुली और बिना किसी रुकावट के चलने के लिए कि आप वेरिफिकेशन टाइट करें अपने एम्प्लॉइज का, ड्राइवर्स का, और साथ ही सिक्योरिटी मेजर्स काफी कड़े रखें। तो वेरिफिकेशन तो 100% करनी चाहिए और सब कंपनीज करती भी हैं। अब हर्षदा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अब मेरे को इस केस के बारे में डिटेल्स मालूम नहीं है, मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बोल रहा हूं जो मैंने पेपर में पढ़ा कि ये सीरियल सेक्स ऑफेंडर है, लेकिन इसके पास पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट था। अब पुलिस बोल रही है कि वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट फेक है। आप मेरे को बताओ कि अगर मैं अपने घर पे भी किसी को एम्प्लॉय करता हूं और वो मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है, उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन से थाने का मेरे को नहीं पता, लेट्स से मेरे म्यूनिसिपैलिटी में ही है। अगर मैं कोई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके पुलिस के पास जाऊं कि ये जेन्युइन है कि फेक है, वो बोलेंगे आपके पास वो कोई काम नहीं है, जब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है तो है। सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि हमारे ये कॉमन सेंस प्रोसीजर जो है वो ब्रोकन है। तो कोई एक तरीका होना चाहिए जिससे हम वेरीफाई कर सकें कि जो सर्टिफिकेट और एब्सोल्युटली वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई पब्लिक यूटिलिटी बेसिकली सर्विस हो रही है उसमें कुछ लेवल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पर आपकी राय लेना चाहूंगी। इस समय आप किस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं जब भी आप कोई ड्राइवर को हायर कर रहे हैं या फिर और लोगों को जोड़ रहे हैं इस बिजनेस से? We have micro entrepreneurs called operators who in turn work with their very close family and friends in their circle, and hence there is an inbuilt trust in the network that is already there. That is one. Before any driver comes on board, we make sure that all his documents are verified, including his driving license, his insurance copies, his RC book, all of these, and then there is a police verification which is also done, and that is uploaded. The police verification document is in progress for a lot more of our drivers who have newly joined, and we'll be completing it. We also make sure that we train our drivers. Each one of those drivers are taken into a training room and told about all the safety measures that are to be taken, how to behave with a customer, and all the processes and procedures that we follow at Taxi for Sure. So all of these steps are taken. Apart from these, we also have a call center in each of the cities that we operate in, which works 24/7, monitoring all the bookings that we take. Okay. So these, a customer can reach out anytime, drivers can reach out anytime to this call center to get solutions for anything that they are facing. Fair enough. एक निवादा भी ऐसी solutions provide करती है। सुरजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह के solutions आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है? वेयर आर यू, एक ऐप जो आप लोगों ने डेवलप किया है, और क्या आपको लग रहा है ये एक ऐप है या फिर ऐसा एक मॉडल आप इन कंपनियों के साथ भी यूज कर सकते हैं?
राइट तो जैसे जहाँ तक वेरायू का सवाल है, हमारे पास दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एरियाज में प्रेजेंस है, जिसमें हम लोग ट्रैकिंग यूनिट देते हैं, इधर इट इज अ सॉफ्ट ट्रैकिंग यूनिट और ऐसा कोई हार्डवेयर यूनिट। इनमें द अदर थिंग दैट वी हैव डन, जो पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें एक पैनिक बटन इनबिल्ट आता है, तो अगर कोई पैसेंजर्स उनको लगता है कि वो डेंजर में है, दे कैन जस्ट ये पैनिक बटन दबा के पूरा एक पैनिक वर्कफ्लो स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे मल्टीपल कॉल्स टू जो शिफ्ट इंचार्ज हो या जो व्हीकल सुपरवाइजर हो उनके पास जाती है। तो ये जो है ये एक डेटरेंट है कैब ड्राइवर्स के लिए कि वो पैसेंजर्स को हार्म ना करे। ओके, सो दिस इज समथिंग, दिस इज अ सिक्योरिटी मेजर जो हमें लगता है कि डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, नॉट जस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड बट ऑल्सो कैब एग्रीगेटर्स हो या रेडियो टैक्सी ऑपरेटर्स हो, उन्हें डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ओके, एंड आई एम श्योर यहाँ पर कई कंपनियां कर भी रही हैं, मुझे ये पता है, और ओला की मैनेजमेंट ने भी ये साफ कहा है कि इस तरह के मेजर्स उनके पास उनकी कंपनी में है और उसको एक्टिवली यूज भी करते हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आप बने रहिए सीबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। सरकार ने जो हरकत में आकर और बिना कुछ सोचे समझे उबर, ओला और टैक्सी फॉर श्योर जैसे बिजनेसेस पर बैन का ऐलान किया, वो चौंकाने वाला था कस्टमर्स के लिए, कंपनी के ड्राइवर्स के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी के मालिकों के अलावा कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। रेहान, मैं यही जानना चाहूंगी, आपने ओला में एंजल इन्वेस्टमेंट की 2011 में, तब शायद कंपनी पर कोई दाव नहीं लगाना चाहता था। इस तरह के जब फीलर्स आते हैं जहां पर एक तरफ सरकार कहती है हम कारोबार को और आसान करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप अपनाएं, डिजिटल इंडिया की बात होती है और फिर ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं। हर्षदा जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव कि सिक्योरिटी हैज टू बी अ स्टेट सब्जेक्ट। जैसे अवनीश जी बता रहे थे अभी कि हाउ ये चेक कैसा कराएं, तो दैट हैज टू बी कवर्ड। आई थिंक अभी हमारे पास गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ इट वांट्स टू वेलकम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, क्रिएट अ नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री, जैसे कि काफी देशों में होता है, तो ताकि हम लोग यहाँ पे पिज्जा डिलीवरी बॉयज हैं, ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, ड्राइवर्स हैं, व्हाइट कॉलर लोग हैं, हम कुछ जानते नहीं। इस तरह के बिजनेस में आप अगर पैसा दोबारा लगाना चाहेंगे इस हादसे के बाद, क्या विल यू थिंक ट्वाइस अबाउट इट? देखिए, इंडियन मार्केट इज अ वेरी लार्ज मार्केट, सो वी आर ऑल दिस थिंग एंड वी आर ऑल इंडियन सिटीजन, सो वी आर हम लोग हमारे गवर्नमेंट पे काफी भरोसा करते हैं और हमारे देश में काफी, बट गवर्नमेंट हमारे साथ हाथ मिला के चलनी चाहिए इंस्टेड ऑफ हमें ब्लेम करने के लिए। हम प्राइवेट सेक्टर पे वो इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने कुछ गलती की है। गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया, अगर आप देखें, आप इंडिया में आप मॉल्स में जाएं, आप मूवी हॉल्स में जाएं, सब जगह सिक्योरिटी फ्रिस्किंग होती है, कोई दूसरे देशों में ये सब नहीं होती है। तो व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज बीइंग क्रिएटेड? सो ये जो है ये काफी इन्वेस्टमेंट स्लो होएगा और हो रहा है। अगर आप हमारी एफडीआई देखें, इट इज मच स्लोअर देन इन चाइना एंड इन काफी अदर कंट्रीज, द इम्पैक्ट इज कमिंग। अवनीश, आपका क्या रिस्पॉन्स है? इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा डेफिनेटली? देखिए, ऑब्वियस है कि वो तो नेगेटिव सिग्नल है कि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं कि टॉप 50 में पहुंचेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खाली एफडीआई से और बिग बैंग रिफॉर्म से नहीं आता है। ये चीजें होती हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होती है। ईज ऑफ एफडीआई और सम रिफॉर्म से ईज ऑफ एंटरिंग द कंट्री में चेंज, आप लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स अगर चेंज कर दो और 3 दिन में सब परमिशंस मिल जाएंगी, तो अगेन ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस विल चेंज। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज व्हाट हैपेंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डे टू डे बेसिस, राइट। एंड सैडली यहाँ पर सरकार वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला रवैया अपना ही नहीं पाई है। आखिर में मैं यही जानना चाहूंगी अप्रमेय आपसे, अब बात हो रही है गाइडलाइंस तय किए जाएंगे, जब तक वो सही तरीके से गाइडलाइंस नहीं बन जाती, शायद आप लोगों पर पाबंदी होगी कई राज्यों में बिजनेस चलाने की। लेकिन किन गाइडलाइंस की हम बात कर रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं? शायद आप भी सरकार के साथ काम करना चाहेंगे उन्हें बनाने में।
So we will definitely want to work with the government to make sure that it becomes better and better for people to do business, right? So the guidelines, the previous guidelines were made based on the requirements of customers and the kind of supply that was there 15 years ago. Now things have changed. People are not using taxis just to go out of town or half day full day packages. They're actually using taxis to go to office every day, to drop their children to school. So the usage of taxis has changed. And when the usage of taxis has changed, the rules of the game on the supply side, which is the owners of the cars, also need to change accordingly, right? And the existing rules that are there are not allowing us to actually service the consumers' new needs, right? So we'll have to sit together and figure out how to make these two match, right? Because there are enough cars on the road which have already got a certain permit because of the existing regulations. Then there will have to be a new set of rules which will help us cater to the needs of the customers that we have today. Right. तो बेसिकली मामला यही है, जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अब हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार भी उसी तेजी से या फिर उससे ज्यादा तेजी से अपनी विचारधारा को बदले और नई गाइडलाइंस लगातार तैयार करती रहे और किसी हादसे का इंतजार ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।